Hello students, today we are going to start our next topic in the synthetic fiber and plastics. But before we starting the next topic in the synthetic fiber and plastic, let us take a brief preview on the previous lecture. Yesterday we have studied about what is the synthetic fiber, what is the basic definition of synthetic fiber that we have studied, what is the artificial substances, what is the natural fibers and what is the artificial fiber that we have already studied in the previous lectures. Okay, and we have seen that what are the examples of natural fiber. I have given you the homework for that and you have done it. Okay, then we have seen the plants fiber, different types of plant fiber that we obtained. So first of all, that we obtained the fiber is cotton, is from obtained from the cotton plant. The linen fiber is obtained from the flax plant. The jute plant is obtained from the jute plant. So these are the basic example that we already seen in the plant fiber. After that, we have studied the animal fiber, different types of silk, wool, and yak fiber. Okay, that we have seen in the previous lecture. That how can we obtain the silk? Silk is generally obtained from the silkworms. Okay, the mulberry silkworm is the most popular kind of silk. We already seen in the previous lectures. Okay, these types of topics we have already done in the previous lecture. If you haven't watched the previous lectures video, then you have to watch it. Okay, so for that we are going to the next topic. Wool is commonly obtained from the sheep. Okay, generally. Okay, then yak fiber is obtained from the yaks. Okay, and then we have started the synthetic fiber. And what is the properties of synthetic fiber? Generally it is the man-made fiber, and the different types of chemical processes happening for making the synthetic fibers. Okay, now let us start the first topic in the synthetic fiber that we obtain. The first synthetic fiber is rayon. So how can we prepare the rayon? Rayon is prepared from the cellulose. The through cellulose is a natural polymer. It needs the extensive chemical treatment to form the rayon. सेल्यूलोज जो है वो क्या है, वो नेचुरल पॉलीमर है, वो नेचर से हम लोगों को मिलता है। बट उसके ऊपर हम लोगों को केमिकली एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके उसमें से हम लोग क्या बना पाएंगे, रेयन बना पाएंगे। अब जहां पर भी बात आती है केमिकली हम लोगों ने प्रोसेस की है, वो चीज ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, आर्टिफिशियल बन जाती है, मैन मेड बन जाती है, और उसी को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। इस वजह से रेयन को हम लोगों ने किस में इंक्लूड किया है, हमने किया है सिंथेटिक फाइबर के अंदर इंक्लूड किया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क। इसका जो मटेरियल है रेयन का, वो सेम टू सेम सिल्क के जैसा ही होता है। सिल्क के क्लोथ्स आप लोगों ने पहने होंगे या तो फिर देखे होंगे, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि रेयन जो है मटेरियल, वो भी सेम टू सेम सिल्क के जैसा ही है, पर उसके ऊपर हम लोगों ने आर्टिफिशियली प्रोसेस की है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड इट इज कंफर्टेबल टू वियर। ये जो है वो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ ही साथ में ये हम लोगों को पहनने के लिए भी अच्छा लगता है। इट कैन बी इजीली डाइड इन विविड कलर्स। ओके, हम लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो भी कलर में हम लोगों को चाहिए उस कलर के अंदर अवेलेबल हो जाता है। ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेयन? सो इसमें क्या होगा कि एक हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी करेंगे, तो मान लो कि हम लोगों ने रेयन के बारे में स्टडी की, तो सबसे पहले रेयन जो है वो बनता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखेंगे। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उसके बाद उसके सारे यूजेस देखेंगे। ओके, तो ये तीन तीन स्टेप्स के अंदर हम सारे सारे सिंथेटिक फाइबर्स को देखते जाएंगे। फिर चाहे वो जो भी फाइबर हो, उसके अंदर हम लोगों को ये तीन चीजों के बारे में स्टडी करनी है। तो रेयन में हम लोगों ने सबसे पहला देखा, रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल्यूलोज। थ्रू द सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर, बट वी हैव एक्सटेंसिव केमिकल प्रोसेस डन ऑन दिस, and then we can then we can apply making the rayon. Okay, after that the properties of rayon. So first property of rayon is here given in इजीली डाइड एंड वूवन इनटू क्लॉथ। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं और क्लोथिंग मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इजीली अवेलेबल हो जाता है, बन जाता है, और क्लोथिंग मटेरियल के अंदर भी हम लोगों को कन्वर्ट करना इजीली हो जाता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज यानी कि कोई भी चीज किस तरह से वर्क करेगी, क्या वर्क करेगी, क्यों वर्क करेगी, ये सारी चीजें हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज है। मान लो कि
अगर कोई आपको आपसे पूछे कि भाई कोई आपके सामने अगर एक मान लो कि आप मोबाइल के अंदर देख रहे हो तो मोबाइल की प्रॉपर्टीज क्या है, तो जनरली मोबाइल की प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो एक तो स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, उसके अंदर हम लोगों को डिस्प्ले मिलेगी, उसके अंदर बैटरी मिलेगी, डिस्प्ले के अंदर हम लोग बहुत सारे कलर्स को देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर्टीज है, वो किस तरह से वर्क करेगा, उसको वो किस तरह से दिखेगा, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज होती है। उसी तरह से इस तरह रेयन की भी क्या है प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, बन जाता है, और उसको हम लोग कन्वर्ट भी क्लोथ के अंदर कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ड्रैप्स वेल। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ड्रैप्स वेल। ड्रैप्स वेल यानी कि हम लोग इस मटेरियल को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्सअप कर सकते हैं, लपेट सकते हैं। मतलब मान लो कि अभी मैंने ये शर्ट पहना है, तो शर्ट के अंदर की ये जो स्लीव्स है मैं उसको इस तरह से फोल्ड कर सकता हूँ, इस तरह से फोल्ड कर सकता हूँ। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से लपेट सकते हैं। ओके, इस क्लोथिंग मटेरियल को हम लोग अच्छे से लपेट सकते हैं और फिर उसको जो चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई भी आप लोगों को बनाना हो, चाहे वो पैंट बनानी हो, शर्ट्स बनाने हो, या तो फिर कोई और चीजें बनानी हो। देन लस्चरियस इन अपीरियंस, तो ये जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लस्चरियस है। लस्चरियस यानी कि वो शाइनिंग मारता है। सिल्क के मटेरियल जनरली क्या, रेयन के मटेरियल जनरली क्या होते हैं, लस्चरियस होते हैं। ओके, गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट। एक तो हम लोगों को पता है कि रेयन जो है वो है कि आर्टिफिशियल सिल्क ही है। तो सिल्क क्या होता है, जनरली शाइनिंग ही करता रहता है। ओके, शाइन करता है ना सिल्क का मटेरियल। तो ये भी जो है रेयन का मटेरियल वो भी लस्चरियस ही है अपीयरेंस के अंदर। ओके, और लास्ट प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड, और ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट एंड वाटर। ओके, तो जनरली गुड एब्जॉर्बेंट है, इसके अंदर कोई भी आप इसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे, स्वेट में रहोगे, तो भी क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो इट वाज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट प्रॉपर्टी ऑफ द रेयन। सो इस तरह से आप लोग चार प्रॉपर्टीज को लिख सकते हो। ओके, देन द यूजेस ऑफ रेयन। So what are the uses? First use is the mixed with the fiberglass for making the helmets. Helmets के इस्तेमाल में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हेलमेट को बनाने के लिए यूज टू मेक जैकेट्स एंड ट्रैक सूट में, सर्जिकल ड्रेसिंग में, रेनफोर्सिंग नाइलॉन टायर्स में। नाइलॉन टायर्स के अंदर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लग्जरी कार्स और ऑफिस लैंड होम फर्निशिंग्स में इस्तेमाल होता है। ओके, कर्टेन्स बिकॉज इट वाज नेसेसरी। ओके, सारे डोर्स और विंडोज के ऊपर हम लोग जो कर्टेन्स डालते हैं वो शाइनिंग होते हैं, तो शाइनिंग होते हैं तो वो रेयन होंगे। ओके, ड्रेस मटेरियल बिकॉज इट वाज सॉफ्ट सिल्की एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बर। तो ये सारे उसके यूजेस है जो आप लोग लिख सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 यूजेस है। सो यू हैव टू, क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू राइट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन रेयन with its properties and uses। So this was the easiest question। सेकंड है हमारा नाइलॉन। अब नाइलॉन जो है वो किस तरह से बनता है, केमिकली इट इज पॉलीमाइड अ पॉलीमर। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप। नाइलॉन जो है वो क्या है, एक तो हम लोग पॉलीमाइड प्रोसेस करेंगे पॉलीमर बनाने के लिए, और वो जो है वो प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइलॉन को बना सकते हैं। तो ये जो है वो सबसे एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल है। नाइलॉन जो है ना वो सबसे सिंथेटिक स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल है, और इसको हम लोग एनी शेप के अंदर मोल्ड कर सकते हैं। ओके, और हम लोग कोई भी चीज बना सकते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इजी टू डाई। नाइलॉन फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजीली। एक चीज जो इसका डिसएडवांटेज है कि भाई ये जो है वो एब्जॉर्ब वाटर को नहीं कर पाता है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इस तरह से कि जिस तरह से जहां पर भी वाटर को एब्जॉर्ब ना करवाना हो, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइलॉन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इट इज इलास्टिक इन नेचर एंड हैंस हाईली ड्यूरेबल। तो ये जो है वो इलास्टिक है नेचर में। इलास्टिक यानी कि उसको हम लोग खींच सकते हैं, या तो फिर कोई भी रबर बैंड के जिस तरह से इस्तेमाल होता है वैस तरह से कर सकते हैं। हाईली ड्यूरेबल, हाईली ड्यूरेबल यानी कि बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा। ओके,
इसी तरह से उसकी प्रॉपर्टी है, जिस तरह से हमने रेयोन की प्रॉपर्टी देखी थी उसी तरह से हम लोग नाइलॉन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि टफेस्ट इलास्टिक मटेरियल है ये भाई, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो इलास्टिक मटेरियल है और उसमें भी ये टफेस्ट है, इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं। इलास्टिक मटेरियल यानी कि पता है ना कि जिसको हम खींच सकते हैं, इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग रबर बैंड के अंदर कर सकते हैं। ट्रैक सूट जो बनता है ना, वो ट्रैक सूट के अंदर हमारा जो रबर होता है, ओके, ग्रिप लाने के लिए, तो वहां पर किसका इस्तेमाल होएगा, वहां पर होगा नायलॉन का इस्तेमाल। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि इसको जितना भी खींचो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके, वो खींच जाएगा। स्लाइटली वाटर एब्जॉर्बेंट, ड्राइज क्विकली, इसका एक तो डिसएडवांटेज था, उसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि ये वाटर को एब्जॉर्ब तो करता नहीं है, तो क्या है कि उसको ड्राइज क्विकली हो जाएगा, तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इसमें वाटर तो एब्जॉर्ब होगा नहीं और जितना भी होगा वो फटाफट से क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इट कैन बी मोल्डेड इनटू फाइबर, ब्रिसल्स, शीट, रोड्स, ट्यूब्स एंड कोटिंग, इस तरह से इसका हम लोग मोल्ड बना के किसी भी चीज को बना सकते हैं। रेजिस्ट ऑयल, ग्रीस, मोथ्स, फंगस एंड अदर पेस्ट, तो ये रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट यानी कि ओपोज करता है, ओके। किस चीजों का ओपोज करता है, ऑयल का, ग्रीस का, मोथ्स का, फंगस का, ये सारी चीजों का ओपोज करता है। ओपोज करता है इसका मतलब इसके ऊपर उन सारी चीजों की इफेक्ट नहीं होंगी। कैन बी मेड इनटू प्लेटलेट्स और पाउडर्ड, क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लेटलेट्स और पाउडर्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इज लश्चरियस एंड इजी टू वॉश, ये भी लश्चरियस है यानी कि शाइनिंग मारता है, और इसका इस्तेमाल भी हम लोग जहाँ पर भी कोई चीज़ें धोनी होंगी वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर तो एब्जॉर्ब होता नहीं। तो इस तरह से इसकी सारी प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज को आप लिख सकते हो, ओके। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 प्रॉपर्टीज है। यूजेस तो बहुत सारे हैं भाई, आप इसमें से सिर्फ 5 या 6 यूजेस लिखोगे तो चलेगा, ओके। सीट बेल्ट बनाने के लिए, स्ट्रेचेबल वियर्स बनाने के लिए, अप होल्स्ट्री बनाने के लिए और रोप्स को बनाने के लिए, रियल थ्रेड, स्लीपिंग बैग, स्विमिंग वियर्स, रेन कोट, ट्रैक सूट, फिशिंग नेट्स, साड़ीज बनाने के लिए, साड़ीज जो मम्मियाँ पहनती है उसके बारे में, उसको बनाने के लिए भी नायलॉन का इस्तेमाल होता है। सो इट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। Explain nylon with its properties and uses. Okay. Now, polyester. What is the polyester? Alcohol and organic acid react together to make the compound called ester, which are polymer. Polyester come under the brand names of Terylene, Dacron, Terene and polyester. तो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग अगर एक साथ में मिलाएंगे, अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स को अगर एक साथ में मिलाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो ईस्टर बनाएंगे, और उस ईस्टर का इस्तेमाल हम लोग कोई भी पॉलीएस्टर पॉलीमर्स बनाने के लिए कर सकते हैं। तो कौन से पॉलीमर्स हम लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग दी ईस्टर्स, तो उसमें हम लोग बना सकते हैं टेरिलिन, उसमें हम लोग बना सकते हैं पॉलिस्टर, उसमें हम लोग बना सकते हैं डैक्रॉन और उसमें हम बना सकते हैं टेरेन। ये सारे मटेरियल्स ही है भाई जो ईस्टर में से बनते हैं। और ईस्टर किस तरह से बनता है, तो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स का रिएक्शन करवाएंगे, केमिकली प्रोसेस करवाएंगे तो जाके ईस्टर बनेगा, और उस ईस्टर में से बहुत सारे पॉलीमर्स बनेंगे जो नीचे दिए गए नाम है। तो उसमें पॉलीएस्टर जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड द केमिकल। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई ये पेस्ट और केमिकल्स जो है उसका रेजिस्टर करता है, अपोज करता है। क्विकली ड्राइज हो जाता है यानी कि सूख जाता है। इजी टू वॉश, डज नॉट श्रिंक और स्ट्रेच, तो ये साफ करना बहुत ही ईजी है और ये ना श्रिंक होता है ना स्ट्रेच होता है। फॉर्म्स अ परमानेंट क्रीज इफ हीटेड एंड प्रेसेड, ओके। तो ये क्या कर देता है कि कोई क्रीज बना देता है, या तो फिर जब इसको गर्म करके हम लोग क्या करेंगे तो कोई क्रीज क्रिएट कर देगा। टफ, लाइट एंड वेट एंड इलास्टिक, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को इजीली पता है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, इसीलिए दोबारा से नहीं कर रहा हूँ। अब पॉलीएस्टर के यूजेस जो है वो क्या है, तो मेकिंग द मैग्नेटिक ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स एंड फ्लॉपी डिस्क, हाईली सुटेबल फॉर शर्टिंग एंड शूटिंग द सारीज और ड्रेपरीज, और उसके बाद है लास्ट वाले मिक्सड विद द फाइबर ग्लास फॉर मोल्डिंग इट टू द हेलमेट्स, प्रोटेक्टिव शीट्स और हल्स इन द बोर्ड्स, ये सारे उसके यूजेस हैं, ओके।
So question number 3, you have to write that explain polyester with its properties and uses. So that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Okay, till then, bye bye everyone. Take care of yourself. And if you want to say something, then you can say in the comment section. Okay, if you had any kind of suggestion, that you can give to the comment section. Okay, chalo, till then, bye bye everyone, and take care of yourself.